friends, I welcome all of you on the Fast Track Defense channel. In this video, we are going to discuss about the most important current affairs for NDA 1 2022 and CDS 1 2022. And this video is going to be the part 5. If you haven't watched the first 4 part, then go on to the channel playlist. I have given the link of the playlist in the description of the video. You can even click on that description and watch the complete playlist, and in that I have covered the part 1, part 2, part 3 and part 4, and this video is part 5 in the continuation of the same first 4 part. And in the first 4 part I have talked about the most important current affairs for the month of October, November, December, January, and this part 5 is going to be the important current affairs for the month of February. And next part, which will come part 6, that is going to be the last and final part, most important current affairs for the month of March. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनडीए के लिए मात्र 15 दिन ही बचा हुआ है. इस 15 दिन में आपकी लाइफ बन सकती है या फिर बिगड़ सकती है. सो टू बूस्ट द प्रिपरेशन, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स का वेटेज अराउंड 60 मार्क होता है, और अगर आप इस 60 में से अराउंड 50 या फिर 45 से 50 मार्क अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, देन यू आर ऑन द वेरी राइट ट्रैक. योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन द वेरी राइट ट्रैक. सो दिस वीडियो विल मेक यू टू गेट अराउंड 40 to 45 मार्क्स इन योर एनडीए 2022, जो कि आपका गैट का सेक्शन है. गैट के सेक्शन में अराउंड 10 से 12 करंट अफेयर्स आते हैं. उस 10 से 12 करंट अफेयर्स में अगर आप हमारी ये सारे पार्ट, I can guarantee you that if you watch all 6 part of our video, then you are going to score around 40 marks in current affairs for NDA GAT section only. We are going to cover this in 2 sections. In section 1, we are going to see the national events and current affairs. As you are seeing that I am scrolling all the questions which I have made for you, and in this we have covered the national events and current affairs, and in the section 2 we are covering the international events and current affairs. As you are seeing all the important questions which I have covered, and now I'm going to start with the video. So we are starting with the नेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन. जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, नेम द ऑपरेशन विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक इट्स नेशनल फ्रॉम यूक्रेन. ये क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल सकता है, आप इसे स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा. अभी रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है वो अभी तक नहीं थमा है, इसीलिए ये क्वेश्चन आप जरूर स्टार मार्क कर लें. सो यहाँ पे आपको ऑपरेशन का नाम देना है जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, टू ब्रिंग बैक दी नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन. सो यहाँ था आपका ऑपरेशन गंगा नाम का ऑपरेशन, और आपको कमेंट में बताना है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन विच इंडिया लॉन्च्ड टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन फ्रॉम अफगानिस्तान ड्यूरिंग तालिबान इश्यू इन अफगानिस्तान. ये आपको क्वेश्चन आपको वीडियो के कमेंट में बताना है. इसके अलावा ऑन विच डे नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ईच ईयर टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रामन इफेक्ट बाय द इंडियन फिजिसिस्ट सर सीवी रामन. सो बेसिकली यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है. सो नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 28th of February. And why we celebrate on 28th of February? Because on this day only Raman effect was discovered by Sir C.V. Raman, in a former Indian scientist, and now he is no more. And आपको कमेंट में बताना है कि इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स के फील्ड में कब मिला था. इन विच ईयर सर सीवी रामन रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज फिजिक्स इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स. ये आपको वीडियो के कमेंट में बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे नेशनल वार मेमोरियल सेलिब्रेटेड इट्स 3rd anniversary. सो नेशनल वार मेमोरियल सेलिब्रेटेड इट्स 3rd anniversary on 25th of February. See, one more thing you have to keep in mind. Whenever you are reading important dates and events, important days and events like when is Science Day celebrated, when is Parakram Divas celebrated, Earth Day celebrated, Forest Day celebrated, World Water Day celebrated, these kind of important days and events, and what was the theme of the particular days and event, these two kind of question becomes very very important for NDA as well as CDS examination. And even if you open up the previous year question, you will find so many questions based on themes and based on important days and events. Even in 2021 it was asked, when is प्रवासी दिवस सेलिब्रेटेड. प्रवासी दिवस इन द मीन NRI डे, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे सेलिब्रेटेड. सो आपको कमेंट में बताना है व्हेन इज NRI डे, दैट मीन्स प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री. ये आपको वीडियो के कमेंट में बताना है. एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ NDA 2021. Moving over to the next question, name the former chief minister of Odisha, the first tribal chief minister of Odisha who passed away recently. So basically the first tribal chief minister of Odisha, his name was हेमानंद बिस्वाल, who passed away recently. ये भी आपको देखने को मिल सकता है. एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो क्वेश्चन मैं आपको स्टार मार्क करने बोलूँगा वो क्वेश्चन आप एक अलग से नोटबुक
या फिर कोई और पेपर या पेन में राइट डाउन कर लें, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वो आपको देखने को मिलेगा आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इंडियन रेलवे first solar plant of 1.7 megawatt solar photovoltaic plant has been commissioned by the Bharat Heavy Electricals Limited BHEL। so ये रहा स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के में इंडियन रेलवे का फर्स्ट सोलर प्लांट। सो मध्य प्रदेश आजकल बहुत सोलर के फील्ड में काफ़ी डेवलप कर रहा है, जैसे कि फिलहाल अभी रीवा में एक इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट सेटअप किया गया था रीवा में। इसके अलावा इंदौर में भी कई सारे सोलर प्लांट सेटअप किए गए हैं। तो ये आपको मध्य प्रदेश का नाम याद रखना है, इंडियन रेलवेज फर्स्ट सोलर प्लांट ऑफ 1.7 मेगावाट कैपेसिटी। उसके बाद मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, पुट स्टार मार्क फॉर दिस क्वेश्चन। ऑन विच डे महर्षि दयानंद सरस्वती डे इज ऑब्जर्व्ड। सो महर्षि दयानंद सरस्वती डे ऑब्जर्व्ड ऑन 26th of February। They can also ask you the contribution of Dayanand Saraswati in the context of history. So you have to read some important events related to the Swami Dayanand Saraswati. Moving over to the next question, former CEO of Sri Lankan airline Vipula Guntektila has been appointed as the chief financial officer of which airlines? So the former CEO of Sri Lankan airline has been appointed as the new CFO, that means chief financial officer of Jet Airways। ये उतना important नहीं है, but it was the part of February month current affairs। Moving over to the next question, ये question आपके लिए important बन जाता है। How many tiger deaths were reported in 2021 in the comparison to 106 in 2020? मतलब in 2020 the tiger death were count 106 and this year it has increased to 127। So it is very bad for entire world in the field of the climate change। सो यहाँ पे आपको बताना है व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च। आपको कमेंट में बताना है व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च एंड व्हेन इज वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। आई मीन व्हेन इज वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेटेड इन होल वर्ल्ड। सो वर्ल्ड टाइगर डे आपको इसको कमेंट में बताना है। इसके अलावा मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, on which day Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti is observed every year? Again Chhatrapati Shivaji Maharaj Day, again important days and events, this is observed every year on 19th of February। Next question, which is the most congested city in India in 2021 as per the 2021 traffic index, followed by Bengaluru and Delhi? So basically they are asking you which is the most congested city in our countries। मतलब इंडिया का सबसे घना स्टेट, मतलब मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ आवर कंट्री दे आर आस्किंग। देन इट इज ऑब्वियसली मुंबई, विच इज मोस्ट कंजेस्टेड सिटी in our country, Mumbai, and after Mumbai we have got Bengaluru, then after Bengaluru we have got Delhi। ये भी आपको याद रखना होगा। Moving over to the next question, which vaccine has become the second one to receive emergency use approval in India for those who aged below 18 years after Covaxin? So basically they are asking which vaccine after the Covaxin has got permission by the government to use for the children who are below 18 years of age। So the name of that vaccine is Corbevax। अब आपको कमेंट में बताना है कि which company manufactures Covaxin and which company manufactures Corbevax। Generally this Corbevax and Covaxin is manufactured by the same company। I have given you the hint and now you have to name that company and the company headquarter is in हैदराबाद। ये भी मैंने आपको एक हिंट के रूप में बता दिया है। अब यहाँ पे आपको उस कंपनी का नाम बताना है। Moving over to the next question, name the Adani Group founder and billionaire who has become the Asia's richest person as the Bloomberg Billionaire Index। So Adani Group का founder Gautam Adani has become the richest person in Asia, but once again Mukesh Ambani has chased this Gautam Ambani, and at present today I am recording the video, so at present Mukesh Ambani is the richest person as per the Bloomberg Billionaire Index। Mukesh Ambani has chased Gautam Adani। Moving over to the next question, name the RJD leader and former chief minister of Bihar who has been sentenced to 5-year imprisonment in the Fodder scam case। I think ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, mainly those who are from Bihar or the neighboring state of Bihar, then you would be knowing about this case because Lalu Prasad Yadav is in jail and recently he was suffering from illness and he went to AIIMS Delhi for treatment, but they did not give any kind of treatment and they just sent him back to the country of to the state of Bihar।
सो बेसिकली आपको इनका नाम है लालू प्रसाद यादव, हु वाज फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। सो इनको 5 ईयर का इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है फॉर द फॉर्डर स्कैम केस, एंड दिस इज his around 6th fodder scam case in which he is caught. So this is again very bad for it gives a very bad image for his entire family. Moving over to the next question, which has become the first union territory to be integrated with the National Single Window System. NSWS is a digital platform that has been built with the aim to allowing investor to apply for the various pre-operation approval required for commencing a business. So basically the first union territory to be integrated with the National Single Window System, NSWS, आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए. सो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इंटीग्रेटेड विद द NSWS इज जम्मू एंड कश्मीर. ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि रिसेंटली आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया गया था, फिर जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केट कर दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी. सो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. Moving over to the next question, which film directed by the Vishnuvardhan won the Best Film Award at Dada Saheb Phalke International Film Festival Award? So basically Dada Saheb Phalke International Film Festival Award, जिसका इवेंट आपको गोवा में देखने को मिला था, इसमें आपको बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को दिया गया. एंड पीपल चॉइस में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? देन दैट फिल्म वाज पुष्पा. ये जो पुष्पा का जो ये जो पुष्पा का जो वेव आया हुआ है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, वही पुष्पा मूवी पुष्पा द राइज को बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द पीपल्स चॉइस कैटेगरी इन द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में दिया गया था. अब आपको कमेंट में बताना है कि हु गॉट बेस्ट एक्टर अवार्ड एंड हु गॉट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022. ये आपको दोनों का आंसर आपको वीडियो के कमेंट में बताना है. बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द दादा साहेब फाल्के पुरस्कार. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका, हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022. सो दैट इज रणवीर सिंह फ्रॉम द मूवी 83 विच इज रिलेटेड टू द 1983 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया जीता था क्रिकेट के फील्ड में, आईसीसी वर्ल्ड कप. तो इसी में रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया था. इसके अलावा हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022. सो यहाँ पे आपका आंसर है कृति सेनन वन द बेस्ट एक्ट्रेस इन द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लेजेंडरी एक्ट्रेस हु हैज बीन ऑनर्ड विथ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फिल्म अवार्ड at Dada Saheb Phalke International Film Festival 2022. Basically they are asking you the actress name who was honored with outstanding contribution to the film. Outstanding contribution to the film category was given to आशा पारेख. इनका भी नाम आपको याद रखना होगा. जब आपको रणवीर सिंह और कृति सेनन का नाम याद है तो आपको आशा पारेख का भी नाम याद रखना होगा. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ये करंट में था तो ये भी आपको जानना जरूरी है. Which Indian insurance company is launching IPO which is said to be the India's biggest ever $18 billion valuation? So which Indian insurance company is launching its IPO? So basically it is LIC Life Insurance Corporation of India. जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी this has become the company to start its own IPO. Next question is what is the name of Ahmedabad IPL franchise team? The name of the Ahmedabad IPL franchise team is गुजरात टाइटन्स. अब आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि हु इज़ द कैप्टन ऑफ अहमदाबाद IPL टीम. दैट मीन्स हु इज़ द कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटन्स. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द को फाउंडर ऑफ इंडिगो हु हैज स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द इंटरग्लोब बोर्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट. So basically you are asked the co-founder name of Indigo. All of you are aware about the Indigo, that is the commercial aircraft. So the co-founder of Indigo is Rakesh Gangwal. This name is important. Next question, very very important because important days and events and that too related to the women. So on which day Indian National Women Day observed every year? ये आपको बताना है. On 13th of February Indian National Women Day is observed. And why we celebrate Women Day on 13th of Feb? Because on this day only the Sarojini Naidu, first governor of Uttar Pradesh, Sarojini Naidu was born. So this is the birthday of Sarojini Naidu, the first governor of
Uttar Pradesh, and she was the first woman to take part in the civil disobedience movement which happened in 1930, popularly known as Dandi March. It started from the Sabarmati Ashram to the Dandi of around 240 miles, which distance was covered in 24 days, and around 78 people started the journey from the Sabarmati Ashram. They reached Dandi on 6th of April and broke the salt law. So ये आपको पता होना चाहिए about the Sarojini Naidu. Moving over to the next question, Indian National Women Day is observed every year to commemorate the birth anniversary of which Indian freedom fighter and poet? So अभी मैंने आपको बताया कि Indian National Women Day is observed to commemorate the birth anniversary of Sarojini Naidu. ये आपको पता होना चाहिए. Moving over to the next question, एक क्वेश्चन आपको बताना है कि in which session Sarojini Naidu was the president of Indian National Congress? किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट थी, जो कि 1927 में हुआ था. अब आपको बताना है कि 1927 वाला सेशन का नाम क्या था, वो किस प्लेस पे हुआ था. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड known as Assam Vaibhav. So basically the Assam's highest civilian award, Assam Vaibhav, the name of the civilian award you have to know, Assam's highest civilian award. So this Assam Vaibhav was given to Ratan Tata. ये आपको पता होना चाहिए. Moving over to the next question, name the actor popular for essaying the role of Bhim in B.R. Chopra Mahabharat, who passed away recently at the age of 74. I hope most of you would have watched the series of Mahabharata, and in that Mahabharat series, the role which was played for Bhim actor, all of you are aware that the character of Bhim, who has got strength of so many elephants. So जो भीम का जो कैरेक्टर प्ले किया गया था, ये किनके द्वारा प्ले किया गया, क्योंकि इनका 74 के एज में इनका देहांत हो गया. सो बेसिकली हिज नेम वाज प्रवीण कुमार सोबती, who played the role of Bhim in the महाभारत सीरीज. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिल सकता है आपके एनडीए एग्जामिनेशन में. सो द क्वेश्चन इज, विच स्टेट वाज एडजस्टेड एज द बेस्ट स्टेट टैब्लू इन द रिपब्लिक डे परेड 2022. सो बेस्ट स्टेट टैब्लू जो कि रिपब्लिक डे परेड हुआ था 2022 में, वहाँ पे कोई चीफ गेस्ट नहीं आए थे फॉरेन से ड्यू टू द कोविड-19. सो उस केस में बेस्ट टैब्लू किस स्टेट को दिया गया था. सो बेस्ट टैब्लू वंस अगेन फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम इट वाज गिवन टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. एंड जो उत्तर प्रदेश जो शो किया था वो था आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ऑफ वाराणसी. इसी का एक मॉडल शो किया गया था वो जो टैब्लू में रिपब्लिक डे 2022 के मार्च पास्ट में. अब आपको बताना है कि जब 2022 में उत्तर प्रदेश को मिला तो 2021 में किस स्टेट को मिला था. ये आपको कमेंट में बताना है कि 2021 में बेस्ट टैब्लू अवार्ड किस स्टेट के टैब्लू को मिला था. सो मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पॉपुलर मलयालम एक्टर एंड कॉमेडियन हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 61 आफ्टर सफरिंग अ हार्ट अटैक. सो हार्ट अटैक के कारण जो मलयालम के जो एक्टर हैं इनका निधन हो गया. इनका नाम था कोट्टयम प्रदीप, ये भी आपको याद होना चाहिए. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओनली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव वन द लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड. सो जो लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो कि दिया गया था 2022 में, इस लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के विनर थे सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर को 2014 में इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. अब आपको वीडियो के कमेंट में बताना है कि ये भारत रत्न है, इसको कब इंस्टीट्यूट किया गया था, और इन 1 ईयर हाउ मेनी पीपल कैन गेट भारत रत्न एट द मैक्सिमम. मतलब मैक्सिमम एक साल में कितने लोग को भारत रत्न दिया जा सकता है, और भारत रत्न कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के कमेंट में देना है. मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु has become the third Indian athlete to be nominated for the Lawrence World Sports Award after Vinesh Phogat and legend of the cricket Sachin Tendulkar. So third Indian athlete to be nominated for this Lawrence World Sports Award is Neeraj Chopra. ये भी आपको पता होना चाहिए, who won gold medal in 2020 Tokyo Olympic. And now I would like to ask few questions from the 2020 Tokyo Olympic, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक्स में. सो जो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इस 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीता. 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड
4 ब्रॉन्ज, सो 4 2 1 इट बिकम 7। और जो एक गोल्ड था, ये एक गोल्ड आपको नीरज चोपड़ा के द्वारा दिया गया, और इसके बाद 2 सिल्वर आपको कमेंट में बताना है कि एक सिल्वर तो आपको मीराबाई चानू जीती अपने वेट लिफ्टिंग के फील्ड में, और आपको सेकेंड जो सिल्वर मेडल है ये कौन जीता, ये आपको वीडियो के कमेंट में बताना है। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसके मैस्कॉट को लेकर, तो जो 2020 के ओलंपिक में जो मैस्कॉट था, ये मैस्कॉट था आपका मिराई टोबा। ये इस नाम आपको याद रखना है, मिराई टोबा वॉज द नेम ऑफ 2020 टोक्यो ओलंपिक मैस्कॉट। एंड 2020 पैरा ओलंपिक जो हुआ था टोक्यो में, उसका मैस्कॉट था सोमिटी। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, बिकॉज इफ़ यू ओपन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देयर यू विल फाइंड मैस्कॉट ऑफ फीफा विच हैज़ बीन आस्क्ड। जो 2018 का जो फीफा हुआ था ब्राज़ील में, जिसमें फ्रांस ने जीत लिया था अर्जेंटीना को हराकर, तो उस समय जो मैस्कट था वो मैस्कट आपके एनडीए के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सो इस बार भी चांस है कि जो 2020 का जो ओलंपिक हुआ है इसका भी मैस्कॉट आपके एग्ज़ाम में पूछने का चांस है, प्लस ऑल द इंडियन मेडल विनर्स नेम इन बोथ ओलंपिक एज वेल एज द पैरालंपिक, ये भी आपको पता होना चाहिए। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल एथलीट and the second Indian sports person overall to win the World Game Athlete of the Year 2021। So World Game Athlete of the Year ये PR श्रीजेश, जो कि अपने इंडियन के जो हॉकी टीम है, मेल हॉकी टीम, उसके जो गोलकीपर हैं, उसी गोलकीपर PR श्रीजेश को दिया गया वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021। और ये जो सेम अवार्ड है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2020, जो इंडियन वुमेन टीम का जो हॉकी के कैप्टन थे रानी रामपाल, उनको दिया गया था 2020 के जो ईयर थे। इन द ईयर 2020 रानी रामपाल वाज गिवन द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। अब आपको बताना है कि इंडिया का जो मेन का हॉकी टीम है ये 2020 में ब्रॉन्ज मेडल किस टीम को हराकर जीता, ये आपको बताना है। प्लस आपको ये भी बताना है कि इंडियन मेल हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, और फिलहाल इंडियन मेल के हॉकी टीम के कैप्टन को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो पद्मश्री दिया गया है इंडियन हॉकी के टीम के जो कैप्टन हैं मेल उनको। और इसके अलावा जो नीरज चोपड़ा हैं, नीरज चोपड़ा को भी पद्मश्री से नवाजा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन चेस प्लेयर हु डिफीटेड द वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन इन एन ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट। सो जो आर प्रज्ञानंदा है, इन्होंने जो वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के एक चेस प्लेयर हैं, इनको हरा दिया एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में, ये आपको पता होना चाहिए। आर प्रज्ञानंदा इज फ्रॉम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लेजेंडरी इंडियन सिंगर, कंपोजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली। सो जो इंडियन जो लेजेंडरी सिंगर हैं, इनका जो निधन हो गया, इनका नाम है बप्पी लाहिरी, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द महारत्ना कंपनी विच हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड एट द एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड फंक्शन हेल्ड बाय द इंडस्ट्री चैम्बर असोचैम। सो यहाँ पे जो महारत्न कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए, कोल इंडिया लिमिटेड इज द नेम ऑफ द महारत्न कंपनी विच इज़ अवॉर्डेड इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी इज कोल इंडिया लिमिटेड। Moving over to the next question, name the legendary Bollywood singer and a Bharat Ratna recipient who passed away at the age of 92 due to the multi-organ failure। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसके आप स्टार मार्क कर लें, इसीलिए आप एक अलग से इसको नोटबुक में मेंशन कर लें कि जो लता मंगेशकर हैं, जो कि फ़िलहाल में जिनका निधन हो गया, सो इनको इन द ईयर 2001 में सबसे पहले तो भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, प्लस में इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लीजियन द ऑनर, उसका नाम है लीजियन द ऑनर, जो कि दिया गया लता मंगेशकर को, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसके अलावा लता मंगेशकर के नाम पे एक नेशनल म्यूज़ियम एज वेल एज एक नेशनल म्यूज़िक एकेडमी दोनों इंदौर में खोला जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लता मंगेशकर के नाम पे नेशनल म्यूज़िक एकेडमी एंड नेशनल म्यूज़िक म्यूज़ियम ये दोनों ओपन किया जा रहा है इंदौर में बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको कमेंट में बताना है कि हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हु हैज़ टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव टू ओपन द नेशनल म्यूज़िक एकेडमी इन
द सिटी ऑफ इंदौर इन टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ लता मंगेशकर। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नोटेड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण इन 2001 पास्ट अवे रिसेंटली। सो इनका नाम था राहुल बजाज, जिनको 2001 में पद्म भूषण दिया गया था, और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। और दोनों को, राहुल बजाज एज वेल एज लता मंगेशकर को, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लीजन द ऑनर दिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण को लेकर, तो एक इंडियन के जो पैरा एथलीट हैं देवेंद्र झाझरिया, इन देवेंद्र झाझरिया को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इसी साल 2022 में। ये आपको पता होना चाहिए। ओनली स्पोर्ट्स पर्सन टू गेट पद्म भूषण इन द ईयर 2022, ये आपको पता होना चाहिए। वो हैं इंडियन टीम के पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया, हु इज़ अ जावलिन थ्रोअर। ये भी आपको पता होना चाहिए। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ दी नेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स। एंड आई थिंक आपको जितने सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया, जितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे होंगे। एंड नाउ वी आर मूविंग टू दी इंटरनेशनल इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स। इसके पहले अभी जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का जो रिजल्ट आया है, तो आपको वीडियो के कमेंट में बताना है कि जो विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश की कितने सीटें हैं, इसके अलावा गोवा के कुल कितने विधानसभा के सीट हैं, इसके अलावा आपका मणिपुर का विधानसभा के सीट कितना है, इसके अलावा उत्तराखंड का विधानसभा का सीट कितना है, फिर पंजाब का विधानसभा का सीट कितना है। इस पांचों स्टेट के विधानसभा के सीट के आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपके पॉलिटी वाले सेक्शन में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बन रही है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। So now we are starting with the international events and current affairs. So the first question is, who has become the new world #1 tennis player after reaching the top spot in ATP ranking on 28th of February 2022? So basically they are asking you who is world #1 in tennis male. So his name is Daniil Medvedev from Russia. रसिया को लेकर आपको जो अभी रसिया यूक्रेन का क्राइसिस हो रहा है, इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। So Daniil Medvedev from Russia won he is the present world #1 tennis player in the men category. And now who is the current president of Ukraine? ये तो आप सभी को पता ही होगा, व्लादिमीर जेलेंस्की जो आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे या फिर आम आदमी के नज़र में छा गए हैं जेलेंस्की, ये आपको पता होना चाहिए, करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। और आप वीडियो के कमेंट में बताएं कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रसिया एज वेल। Moving over to the next question, which sports federation has suspended the Vladimir Putin as honorary president and ambassador in the light of ongoing war in Ukraine? So basically it is International Judo Federation which has suspended the Russian president Vladimir Putin as the honorary president due to रसिया यूक्रेन क्राइसिस। जो अभी रसिया यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, इसको लेकर जो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन है, इस इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने एक ऑनररी प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया था रसियन के प्रेसिडेंट को, क्योंकि जो रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये खुद ब्लैक बेल्ट रह चुके हैं कराटे के फील्ड में, इसीलिए टू ऑनर दैट जूडो के फील्ड में, सो टू ऑनर दैट जो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन है उनको उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को ऑनररी प्रेसिडेंट के रूप में चुना था, लेकिन फिलहाल अभी उनको हटा दिया गया है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा will retire and decommission the International Space Station. So NASA is going to retire the International Space Station in 2031. आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हाउ मेनी कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ नाटो? नाटो जो कि अभी काफ़ी चर्चा में है ड्यू टू रसिया यूक्रेन क्राइसिस, बिकॉज द मेन रूट कॉज ऑफ रसिया यूक्रेन क्राइसिस इज नाटो ओनली. So you are asked how many countries are there in the NATO, and NATO stands for North Atlantic Treaty Organization, and the headquarter of NATO is in Brussels. Brussels is the capital city of Belgium, and the headquarter of European Union is also in the Brussels only. But in European Union there are 27 countries, but in NATO there are 30 countries. Moving over to the next question, which is the first country in the world to authorize a plant-based COVID-19 vaccine? So Canada has become the first country in the world to authorize plant-based COVID-19 vaccine. ये आपको पता होना चाहिए. Next question is,
Which country invaded Ukraine on 24th of February 2022? So it is the country of Russia which has invaded Ukraine. अब आपको बताना है कि जैसे ही रसिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया, इसके इन्वेड करने के जस्ट एक दिन के बाद रसिया ने दो अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री को घोषित कर दिया है। वो दोनों कंट्री का नाम आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है, और वो कंट्री आपके डोनबास के रीजन में आता है। डोनबास इज़ द नेम ऑफ द रीजन विच इज़ प्रेजेंट इन द यूक्रेन। उसको रसिया ने इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में घोषित कर दिया है। तो आपको वीडियो के कमेंट में बताना है कि विच आर द टू कंट्रीज विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री बाय रसिया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और, मिन्स्क अग्रीमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मिन्स्क अग्रीमेंट इज रिलेटेड टू रसिया एंड यूक्रेन। ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। मिन्स्क एग्रीमेंट अभी काफ़ी न्यूज़ में था। इसी मिन्स्क एग्रीमेंट के कारण रसिया ने यूक्रेन के दो रीजन को अलग अलग कंट्री के रूप में चेंज कर दिया है और उन्हें अलग कंट्री की घोषणा भी कर दी है। दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ मिन्स्क एग्रीमेंट। सो मिन्स्क एग्रीमेंट इज साइंड इन द कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, When did Ukraine declare independence from USSR? सो यूक्रेन को USSR से इंडिपेंडेंस मिला था 24 अगस्त 1991 को। जब 1991 में जब कोल्ड वार एंड हुआ तो USSR 15 अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया। उनमें से एक यूक्रेन भी था। ऑन 24 अगस्त यूक्रेन डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम USSR। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर has been re-elected as the president of which country? So Frank Walter Steinmeier has been re-elected as the president of Germany. बट वैसे तो जर्मनी के प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं रहता है। बेसिकली ही इज़ द नॉमिनल हेड, लाइक ही इज़ अ काइंड ऑफ मोनार्क हेड। द एक्चुअल पावर इन द जर्मनी इज़ विद द चांसलर ऑफ द जर्मनी। और अभी जो जर्मनी के नए चांसलर है, उस चांसलर का नाम है आपका ओलाफ स्कोल्स, नॉट एंजेला मर्केल। ओलाफ स्कोल्स, ये आपको नाम पता होना चाहिए। ओलाफ स्कोल्स इज़ द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व? सो ऑन 21 ऑफ फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व। ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्यू मोर क्वेश्चंस, व्हेन इज पराक्रम दिवस ऑब्जर्व्ड? सो पराक्रम दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन 23 ऑफ जनवरी। Next question is, when is International Women Day observed? International Women Day observed on 8 of March. Next question is, when is World Water Day? विश्व जल दिवस। World Water Day is observed on 22nd of March. ये भी आपको पता होना चाहिए। When is World Forest Day? World Forest Day is observed on 20th of March. ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा when is प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व्ड? दिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 9th ऑफ जनवरी, बिकॉज ऑन 9th ऑफ जनवरी 1915 ओनली महात्मा गांधी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। सो टू कमेमोरेट दैट पर्टिकुलर डे वी हैव स्टार्टेड टू सेलिब्रेट 9th ऑफ जनवरी एज प्रवासी भारतीय दिवस। एंड व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्जर्व्ड every year? Then that is the 21st of June. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑब्जर्व्ड every year. ये भी आपको पता होना चाहिए। Moving over to the next question, which country has come up with the idea of to celebrate the International Mother Language Day? UNESCO approved this initiative in 1999 as the 30th UNESCO General Conference. So यहाँ पे it was the idea of Bangladesh to celebrate the International Mother Language Day, and the idea was made successful by the UNESCO at the 30th UNESCO General Conference in 1999. So this was the idea of Bangladesh to celebrate the International Mother Language Day on 21st of February. Moving over to the next question, which country has successfully tested the new naval air defense system called Sea Dome? So Sea Dome is the new technology of Israel. As all of you are aware that during the Israel-Palestine issue, Iron Dome was in news. So Iron Dome is when you attack from land to land, but if you want to attack from sea to land, then in that case Sea Dome is used as an air defense system, Sea Dome. So Sea Dome is again developed by Israel only. So India and Israel has completed 30 year of diplomatic relation. 30 year of diplomatic relation, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको वीडियो के कमेंट में बताना है कि जो इंडिया ने के पास जो हेरॉन ड्रोन है, हेरॉन ड्रोन इंडिया ने किस कंट्री से परचेस किया है। देन इसका आंसर है, हेरॉन ड्रोन ने
इंडिया ने इसराइल से परचेस किया है, ये आपको पता होना चाहिए हेरॉन ड्रोन के बारे में। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया हैज़ लिस्टेड विच एनिमल एज एंडेंजर्ड स्पीसीज आफ्टर देयर नंबर सॉ ए मैसिव प्लंज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ बुश फायर। सो फिलहाल अभी ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर हुआ था, उस बुश फायर में एक प्रकार की प्रजाति, मतलब ए काइंड ऑफ स्पीसीज नोन एज कोआला। कोआला लुक्स लाइक ए काइंड ऑफ बियर which got endangered, मतलब due to the forest fire their species got burned and it has been listed in the endangered red list by IUCN। so ये आपको पता होना चाहिए, IUCN has listed koala in the endangered list of IUCN। moving over to the next question, विच कंट्री वन द ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप। सो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने फिर से अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत गया है, और जो इंडिया टीम के जो कैप्टन थे, इंडियन टीम के कैप्टन हैं यश धूल। यश धूल इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन अंडर-19 टीम अंडर हुज कैप्टनसी इंडिया वन दी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब आपको कमेंट में बताना है कि इंडिया ने किस कंट्री को डिफीट किया था अंडर-19 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में, और ये जो अंडर-19 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसका होस्ट कंट्री कौन था। ये दोनों क्वेश्चन आपको वीडियो के कमेंट में बताना है। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। सो वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 13th फरवरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑन विच डे वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड 4th फरवरी। सो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कैंसर डे 4th फरवरी, इसीलिए आप इसको स्टार मार्क कर लें। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। आई हैव कवर्ड ऑल द करंट अफेयर्स। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई एम जस्ट जूमिंग आउट, so you can just take the screenshot of this first slide, then you can take the screenshot of this national events and current affairs, and you can take the complete screenshot of this national events and current affairs, because this current affairs is going to be very much helpful for all of you. So with which we have completed the part 5 of the video, and if you want to watch the part 6 of the video, please subscribe the channel and share this channel to all of your friends, because these questions which we have taken, these questions has been taken after the analysis of previous 10 to 14 years of question paper. If you watch our videos alone for the current affairs, I would say it is more than enough. You don't need to refer any other channel, you don't need to refer any other website, because this is going to be the 110% accurate current affairs. So this was all about the end of the video. Still, if you have any doubt regarding the NDA examination, you can ask your doubt in the comment section. Even if you want that I should tell you the previous year question solution, if you want me to come up with the previous year question solution, अगर आप चाहते हैं कि मैं previous year को जो questions आए हैं उनका solution भी लाऊं आपके मैथ के सेक्शन में या फिर गाइड के सेक्शन में, तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगला टॉपिक किस टॉपिक पे हमें अगला वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो लाऊं, और अगर आप उस वीडियो को देखें तो आपका एक कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए, इसीलिए आपका प्रिपरेशन में बूस्ट हो। सो वंस अगेन आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर tuning till the end. Thank you. Jai Hind. Bye bye.